As we grow up in India, we understand that these directions are quite important to us. Even when we order some food product from Swiggy or Zomato, we tell them either say right le lena, either say left le lena, or somebody is asking how if they are constructing a house, they always have this concern कि जो gate होगा वो north side होगा या south side होगा. And at certain particular point of time when we are doing certain kind of skill session, then also the question arises that particular person is sitting north of you or etc etc. So direction sense test has always been a part of our life. I'm Harsh, project lead Maverick. As you are well aware by now that the project is dedicated to Professor Shamnath Bashir and his goal of making legal education reach marginalized communities. The idea is to create leaders and not followers. Access must be created where it is possible. At Law Seeker at Project Maverick, we aim at providing free training for law aspirant for all law entrance exam. In this endeavor, again, we are back with the session. Over to you, ma'am. Thank you, Harsh. Thank you so much. So, hello everyone, and today's session, let me put the chat box on. So, good evening, Arushi. Good evening. So today's session is about direction sense, as Harsh told all of us. So this is directions में देखिए, अगर हम अपने एग्जाम लेवल पे बात करें, तो इट्स अगेन अ वेरी वेरी सिंपल बेसिक सा टॉपिक है. ये बहुत इजी है समझने के लिए भी, कोई बहुत इसमें हार्ड एंड फास्ट देयर इज नॉट मच ऑफ द थिंग्स हियर. तो पहले तो इसका बेसिक एक बात समझते हैं. व्हाट डायरेक्शंस वी अंडरस्टैंड, राइट? हाउ मेनी टोटल डायरेक्शंस डू वी हैव टोटल? अगर हम अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बात करें तो टोटल डायरेक्शंस आप कितना समझते हैं? 8 exactly. So Arushi says 8, and I will go with that also. क्योंकि 4 are the main directions and the 4 are cardinals. Cardinals are the one which are made up of these 4 directions only. That is, if we talk about north, so north is this, east is this, south is this, west is this, right? If someone has to move in north direction, in that case अगर वो person यहाँ से चलता है तो north में वो इस तरह से movement करेगा, ईस्ट में वो इस तरह से मूवमेंट करेगा, साउथ में इस तरह से जाएगा, वेस्ट में इस तरह से जाएगा, राइट? But if we combine north and east, if there is a direction made up of north and east, or we talk about the whole area that is under the north and east direction, will be taken in the northeast. So this is northeast, this is southeast, this one is southwest, and this one is northwest, right? Now the second thing, so these are the 4 and 4, 8 total direction. North, east, south, west are the 4 main directions. North, east, southwest, northwest, these are the cardinals. So that's how the 8 directions we have. And then now talking about the second most important thing, the second important thing we have to keep in mind while doing a direction sense. Sorry for the disturbance, guys. So the second thing that we have to keep in mind while doing directions session is जिस भी डायरेक्शन में आप मूवमेंट करते हैं, you should be aware of the right and left of that direction. तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी बहुत ज़्यादा इशू होता है. तो इसको बहुत क्विकली रैप अप करके आगे हम क्वेश्चंस की तरफ विल प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वेश्चंस. सो नॉर्थ में दिस विल बी राइट, दिस विल बी लेफ्ट. जब भी आप नॉर्थ डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे, यू कैन ऑलवेज टेक whatsoever your hand movements are, like जो आपका राइट होगा वो इनका राइट होगा, जो आपका लेफ्ट होगा वो इनका लेफ्ट होगा. इट्स लाइक दैट. ईस्ट की हम बात करें तो व्हेन यू टेक अ राइट 90 डिग्री टर्न फ्रॉम नॉर्थ, यू विल बी इन ईस्ट, एंड ईस्ट में राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा. You again take a 90 degree turn on your right side, you come to south, and there right will be this, left will be this, and one more of 90 degree turn, you will be in west, and right will be this, and left will be this. Again one more of 90 degree turn. Now you have covered total of 360 degree turns, complete of 360 degree turn. So two main directions like north and east. North के लिए east and west are its two adjacent main directions.
So these two adjacent direction, main directions will have an angle of how much? This angle is 90 degree. This angle is also 90 degree. So everywhere the angle will be 90 degree. Right? Okay. So, but if you want to like, if we are solving a question like where there are lot many turns, तो उस जगह पे हमें अगर हम इस तरह से चलने लगे कि नॉर्थ में राइट ये था, लेफ्ट ये था, ईस्ट में ये था, साउथ में ये था, वेस्ट में ये था, दैट माइट एंड अप टेकिंग लॉट ऑफ टाइम. तो दूसरा भी एक तरीका है कि अगर आप राइट और लेफ्ट को रिमेंबर या दिमाग में रखना चाहते हो और यू वांट टू deal with this in a very short span of time, then the best way is whenever you have to take a right turn, whenever you have to take a right turn, you make the person go clockwise. जब भी आपको right turn लेना है, you make the person go clockwise. जब भी आपको लेना है left turn, you make the person go anti-clockwise. You make the person go anti-clockwise, right? How this works? See, let's suppose you are starting in a direction north. अगर आपने किसी एक point से north में शुरू किया, this is how you will go, and then you took a right turn. So either I have to remember कि north के right turn लेने पे क्या होगा या left में क्या होगा, or you just simply have understood one fact that right मतलब you make the person go clockwise. Now this arrow that you draw to show the movement, you can make this arrow go either this side or this side. After this point, you can either go here or you can go here. These are the two turns you can take. But taking it this side will make this previous arrow go clockwise direction. As you see, the clock moves, right? If you are going to take this here, it will be anti-clockwise. So, or let's take another example. If we are going in east, if you have to take a right turn, you go, make the person go this way, right? अगर आप जा रहे हैं east में, अगर left जाना है तो आप ऐसे जाओगे. तो can you see the movement of the arrow? This is going anti-clockwise, this is going clockwise. Getting the point? Now, do you guys have much of the problem here, so that if I have to discuss it more, or shall we go on to the questions? Great. Okay. So this is the first question in front of you guys. Try this one. Let's see. So Arushi has replied and she says east. Okay. North. So Arushi and Ashish have replied with east, and Rishikesh come up with another answer. He says north. And let's see one more person how. East. Okay. So Rishikesh, I am sure that you have answered right. And what mistake other are making, I'm very sure कि इन्होंने जो structure बनाया वो बिल्कुल ठीक बनाया, उसमें कोई problem है नहीं. So let's start the question from the beginning. From her house, Avantika went 15 kilometers to the north. Let's suppose this is the house, right? This house से Avantika is going how much? She is going 15 kilometers to the north. So 15 kilometers to the north. Let's make it this way. This is 15 kilometer. रेंज का आपको इसमें ध्यान रखना होता है. रेंज का से मेरा मतलब क्या भी अभी अब बात करेंगे इस बारे में भी. Then she turned west. Now there are two kinds of turning. And understand this thing. In what way I'm saying there are two kinds of turning? Sometimes you are given that the person started walking in north direction and then he took a left turn or a right turn. You understand? Second case is this, the question that shows you that the person, she turned west. अब उसने west में turn करा है, तो वेस्ट में टर्न करा. अगर यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है तो दिस इज द
standard structure that you follow all the time in these questions. This is north, this is east, this is south, this is west. तो अगर west में turn किया तो wherever the person is आपको इस direction में लेकर आना है. तो अभी वो यहाँ पर उसको west में turn करना है, तो she will go in west like this, right? So then she turns west and covers 10 kilometer. यहाँ पर 10 kilometers हो गया. Then she turns south, not this line. Then she turns south and covers 5 kilometers. South turn करेगी और 5 kilometer turn करेगी. So now this what we initially I said कि हमें range का ध्यान रखना पड़ता है. That's what I meant by कि अगर आपने इतने distance को 15 दिखाया है, अब यहाँ पे उसको साउथ में टर्न करना है, तो साउथ में टर्न तो वैसे करेगी, बट साउथ में टर्न करके उसने कितना मूवमेंट किया है, 5 किलोमीटर ओनली. तो जो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो आपको इसके रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा. इफ दिस इज 15 देन 5 हैज टू बी वेरी लेस in comparison to that, right? Then finally turning to the east, she covers 10 kilometer. अब finally she has turned to east, तो east में टर्न करेगी तो ऐसे आएगी. And how much has she covered? 10. Since this from here to here the distance was 10 kilometer, यहाँ से यहाँ तक का distance भी क्या होगा, 10 kilometers होगा. तो ये point, this point and this point, especially this point and this point, these 2 points will be on the same line. Why? Because the distance is parallel, the distance is common, same, right? So now that she's ended up here. Okay, now guys, understand this thing, especially the people who are saying that east will be the direction. The question says, in which direction is she from her house? You understand the question? They are not asking you the direction she is in right now. If the question would have been, now understand the difference. If the question would have been, in what direction she is facing as of now, if the question would have been this, what direction she is facing as of now, or the question would have been what direction she is moving into, what direction she is heading to. अगर question इस तरह से होता तब आपका आंसर ईस्ट होता, that would have been perfect. Why? Because उसने चलना यहाँ से शुरू किया घर से. She went 15 kilometers in north direction, then she took a turn in west direction. She walked 10 kilometers, then she took a turn in south direction. She went around 5 kilometers, then again she took a turn in east direction, and here she walked around 10 kilometers. Now she is here. If they ask what direction she is facing as of now, you will be saying east, because this is how she is standing right now. But when the question is she is standing here right now, but the question is asked with respect to her house. For example, अगर उसके घर में उसकी मदर है, यहाँ पर उसकी मदर उसको देख पा रही है, राइट? अगर उसके घर में उसके कोई रिलेटिव है, मम्मी है, पापा कोई है, और उसकी रिस्पेक्ट में पूछा जाए कि आप कहाँ है, वो अभी कौन, अवंतिका, तो उनके लिए वो कहाँ है? उनके लिए तो वो नॉर्थ में है ना, राइट? उसकी अपनी डायरेक्शन क्या है, ये तो पूछा ही नहीं. पूछा ये है कि वो अपने घर से किस डायरेक्शन में. यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर हाउस. अपने घर से वो किस डायरेक्शन में है. सो अपने घर से है वो नॉर्थ में. क्लियर? ग्रेट. तो अब आप लोग ये बात का ध्यान रखेंगे, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस, कि द डायरेक्शन हैज बीन asked in respect of some point, in respect of house, in respect of some building or something. But agar question aayega ki what direction the person is going into, moving into, something like that, then you can answer what you have answered for this question, that is east, right? So I have the ideas clear. Rishikesh, you already gave the right answer. That's great. Very good. तो चलिए इसके लिए अपना आंसर क्या हो गया? सॉरी, नॉर्थ कहाँ है? हाँ, सी ऑप्शन, दैट इज नॉर्थ, राइट? अच्छा, एक बात और बताओ जरा, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो लेट्स टेक इट इन अदर वेज आल्सो. इफ सपोज दिस डिस्टेंस वुड हैव बीन 12 किलोमीटर, राइट? तो हम कैसे बनाते इसको? हम घर से शुरू करते. वी वुड हैव बीन in 15 kilometers in north, then a turn in west, that is how much, 10 kilometer, then a turn in south 5 kilometer, then a turn in east. But this time instead of 10 we are saying 12 kilometer. तो 12 तो थोड़ा सा इससे आगे निकल जाएगा, राइट? अब वो लड़की यहाँ पर है, द गर्ल इज हियर राइट नाउ, अवंतिका. In this case where she is from her house, so from her house this entire range is what direction? North. This entire range is south direction, this entire range is east direction. So where is this point in comparison to the main directions? So it is somewhere in between north and east, and that is why the answer will be northeast. Exactly. तो इस बार सबने आंसर सही दिया. ऋषिकेश, आशीष, अभिषेक, ओके, सबने आंसर ठीक किया है. That's great. So I hope this will remain in your mind. Okay, let's move forward from there.
Okay, guys. So this is our second question. No, not this. This is our second question. Try this one. Okay, Rishikesh has given the answer. That's great. Arushi Rishikesh says 90 now. Okay. Okay. Fine. Arushi says 100. Rishikesh says 90. He's corrected himself. Okay. Great. Sana says 90. That's great. आरुषि changes her answer. आरुषि ने पहले क्या बोला था? अच्छा, आरुषि ने पहले 100 बोला था. ओके ग्रेट. ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं. अभी काफी लोगों ने आंसर दे दिया और काफी लोगों ने सही आंसर दिया है. दैट्स वेरी नाइस. A postman was returning to the post office, which was in front of him to the north. See, जब जब आप इतना स्टेटमेंट रीड करोगे, आप पोस्टमैन वाज रिटर्निंग टू द पोस्ट ऑफिस, तो एक बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि रिटर्न तो कर रहा है, लेकिन व्हाट डायरेक्शन इज ही मूविंग राइट नाउ. तो उसको क्लियर करने के लिए, उसको बताने के लिए, द नेक्स्ट सेंटेंस कम्स आउट एज that he is returning to the post office which was in front of him, जो कि उसके सामने ही था. बट सामने कहाँ था? सामने था नॉर्थ डायरेक्शन. दैट मीन्स जो सिचुएशन अभी है, वो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि पोस्टमैन कुछ इस तरह से चलते हुए आ रहा है और सामने कहीं जाके क्या है? पोस्ट ऑफिस है विच इज इन फ्रंट ऑफ हिम. तो ये कहीं से वापस आ रहा है लेटर्स डिलीवर करके, और पोस्ट ऑफिस जो है उसके सामने है. एंड so the postman, the journey postman is going to follow is somewhere like this, right? Somewhere this, right? So when the post office was 100 meters from him, he turned to the left. अब जब पोस्ट ऑफिस, लेट सपोज वो चलते हुए आ रहा था, चलते हुए आ रहा था, यहाँ पे वो पहुंच गया. अब जब ये पोस्टमैन और पोस्ट ऑफिस के बीच का जो डिस्टेंस है, अब जब ये 100 मीटर्स रह गया, राइट? सो व्हेन द पोस्ट ऑफिस वाज 100 meters अवे फ्रॉम हिम, ही टर्न टू द लेफ्ट. सो ऑलरेडी ही इज वॉकिंग इन विच डायरेक्शन? नॉर्थ. राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा. अगर वो यहाँ पे जब 100 मीटर का डिस्टेंस रह जाता है, ही इज टर्निंग टू हिज लेफ्ट, दैट मींस ही इज टर्निंग टू द वेस्ट डायरेक्शन. तो लेफ्ट में टर्न करेगा, तो इस तरह से मूवमेंट होना चाहिए. लेफ्ट में टर्न करने के बाद देन एंड मूव्ड 50 meters टू डिलीवर द लास्ट लेटर एट शांति विला. और उसने 50 मीटर का मूवमेंट किया टू डिलीवर हिज लास्ट लेटर एट शांति विला. तो यहाँ पे 50 meters चलने के बाद he has to deliver a letter at शांति विला. So somewhere here he has to come. तो 50 मीटर का डिस्टेंस ने यहाँ कंफर्म कंप्लीट किया. He then moved in the same direction. Now sometimes people get confused here also कि सेम डायरेक्शन कौन सा वाला, ये वाला सेम डायरेक्शन या ये वाला सेम डायरेक्शन जहां पर वो ओरिजिनली चल रहा था. तो ऑब्वियसली सेम और लेटेस्ट वही होगा जो लेटेस्ट डायरेक्शन था. तो यहाँ पे सेम मतलब जिस डायरेक्शन में उसने 50 meters मूवमेंट किया है वही सेम डायरेक्शन है. सो ही देन मूव्ड इन द सेम डायरेक्शन फॉर 40 मीटर. तो उसी डायरेक्शन में उसने 40 meters और मूवमेंट किया है, तो 40 मीटर और यहाँ पे आ जाएगा. 40 मीटर टर्न टू हिज राइट एंड देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्ड 100 मीटर. अब ये राइट में टर्न करेगा. तो वेस्ट में अगर आप राइट टर्न करेंगे तो यू विल बी इन नॉर्थ. और नॉर्थ में मूवमेंट करने के बाद ही हैज moved how much? 100 meters.
So after turning to his right, he will be in north, और north में वो होगा कहाँ पे? Wait. कितना मूवमेंट किया यहाँ पे उसने 100 मीटर. नाउ वी अगेन हैव टू पे अटेंशन टू द रेंज. यहाँ पे 100 था, यहाँ पर भी 100 है, यानी कि राइट नाउ ही विल बी जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस, क्योंकि डिस्टेंस सेम है. ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कंप्लीटली सेम है, दैट इज 100 मीटर. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग हाउ मेनी मीटर्स was he away from the post office. तो पोस्ट ऑफिस से वो कितना दूर है? वो इतना ही दूर तो है पोस्ट ऑफिस से, राइट? क्योंकि एग्जैक्टली पोस्ट ऑफिस के सामने जाके रुका. कितना दूर है? ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है. तो दिस इज 50 एंड दिस इज 40, तो दिस एंटायर डिस्टेंस विल बी 90 meters. So 90 meters is the correct answer. Arushi, Sana, Rishikesh, so everyone has given the right answer. किसी ने गलत दिया भी तो उसने अपने आप ठीक कर लिया. That's great. Let's move on to the next one. किसी को कोई confusion है इस question में? Any doubt that is coming to your mind? ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर. So the next is this. Try this one. Ma'am, 4 and 13 are in the same direction. Wait. Till after walking, she turned to her left and walked 8 kilometers. Now she turned left and walked 2 kilometers. After this, she turned to right, walked 4 kilometers. Now to right, 30. 4 and 13 are in the same direction. How can you say that? It can be in the same direction, but then you have to see कि किस उसके prior direction क्या थे. आपने ये जो 4 किलोमीटर चला, ये किसकी रिस्पेक्ट में राइट टर्न है? अब देखो ऐसे डिफरेंस क्रिएट होगा ना. अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में हो और ईस्ट से आपने राइट टर्न किया तो आप पहुंचोगे साउथ में. अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में, वहां से आपने राइट टर्न किया तो आप पहुंचोगे वेस्ट में. तो फिर फ्रॉम व्हाट डायरेक्शन यू आर टेकिंग द राइट टर्न, दैट विल मैटर. तो जो आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि 4 and 13 आर इन द सेम डायरेक्शन, इट कैन नॉट बी, आई कैन नॉट से येस टू दैट. इट कैन बी, इट कैन नॉट बी, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर यू आर फॉलोइंग, राइट?
Rishikesh says 7 root 2 plus 12 root 2. 7 into 2 plus 12 into 2. What is this, Rishikesh? आरुषि का आंसर है नन. अच्छा, you guys are still solving. Should we discuss, or you're still solving on this one? Arushi, okay, fine, no problem. पर इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है इस क्वेश्चन में? वेरी बेसिक, वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज. कहाँ पे दिक्कत हुई आप लोगों को? चलो डिस्कस कर लेते हैं. हाँ एग्जैक्टली, है ना. देखिए स्ट्रक्चर, ठीक है, अभी वही डिस्कस कर रहे हैं आशीष. एंड ट्राई टू रिलेट कि आप लोगों को कहाँ प्रॉब्लम हुआ. ठीक है, मुझे नहीं लगता था कि हाँ इसमें कोई कहीं पे ट्रबल आपको होना चाहिए. टिया स्टार्टेड फ्रॉम हर होम टू ऑफिस. शी स्टार्टेड इन ईस्ट डायरेक्शन. तो उसने स्टार्ट किस डायरेक्शन में किया? ईस्ट में शुरू किया. तो आप ईस्ट में चलाना शुरू करो इसको. ठीक है, लेट्स सपोज आपने यहाँ से चलाना शुरू किया. ठीक है, तो ईस्ट में चलाओ पहले. कितना ईस्ट में? शी इज मूविंग आफ्टर वॉकिंग फॉर हाउ मच? फॉर 4 किलोमीटर. तो आफ्टर वॉकिंग फॉर 4 किलोमीटर्स शी टर्न टू हर लेफ्ट. अब आप ईस्ट में मूवमेंट कर रहे हैं. आप अगर लेफ्ट टर्न करेंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? ईस्ट से आप पहुंच जाएंगे नॉर्थ में. तो वो नॉर्थ में आ गई है. ठीक है, सो आफ्टर वॉकिंग फॉर 4 किलोमीटर्स, यानी कि उसने जिस डायरेक्शन में शुरू किया था दैट वाज ईस्ट डायरेक्शन, उसमें 4 किलोमीटर चलने के बाद शी टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड वॉक्स 8 किलोमीटर. उसने अपने लेफ्ट में टर्न किया एंड शी हैज वॉक फॉर हाउ मच? शी हैज वॉक फॉर 8 किलोमीटर्स. तो ये कुछ 8 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने यहाँ पे कवर किया है. ठीक है क्या? राइट. नाउ शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर. नाउ शी इज गोइंग इन नॉर्थ डायरेक्शन. नॉर्थ में आप लेफ्ट टर्न करेंगे तो आप पहुंचेंगे वेस्ट में. यहाँ पर सो नाउ शी टर्न्स लेफ्ट. टर्न लेफ्ट करेगी तो वो आएगी किधर? वेस्ट में आएगी. मूवमेंट कितना किया है? 2 किलोमीटर्स का किया है. तो सिंस दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? 4 किलोमीटर. तो इसका हाफ बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2 किलोमीटर इसका हाफ कर लो. ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर दिस शी टर्न्स टू राइट, वॉक्स 4 किलोमीटर. इसके बाद उसने राइट टर्न किया एंड शी वॉक्स फॉर 4 किलोमीटर. व्हाट डायरेक्शन शी इज ऑलरेडी इन? शी इज इन वेस्ट. वेस्ट में आप अगर राइट टर्न करोगे तो आप पहुंचोगे कहाँ? आप पहुंचोगे नॉर्थ में. राइट. तो नॉर्थ में शी हैज मूव्ड हाउ मच? शी हैज मूव्ड 4 किलोमीटर्स. तो 4 किलोमीटर्स ये हो गया. ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है. ये हो गया 4 किलोमीटर्स. उसके बाद नाउ आफ्टर Rishikesh, route 265. Okay, we will see to that. Maybe the answer is correct. We'll see to that. Now, after turning to her right, अब इसने right में turn किया. Where she is right now? In what direction she is in? She is in the north direction. And if she is going to take a right turn in this north direction, she will be in east direction. North के right में क्या आता है? East direction. So now, after turning to her right, she walks 13 kilometers. So this much is we can take as 13 kilometers. ठीक है क्या? ये हो गया. And reached her office. तो यहाँ पर उसका क्या आ गया? ऑफिस. यहाँ पर क्या था उसका? घर. Right? Home and office. अब what they are asking? Find the shortest distance between her home and office. Shortest distance आपको बतानी है उसके घर और ऑफिस के बीच में. पहली बात तो आप whenever they ask about the distance and direction sense test, जब भी डायरेक्शन के क्वेश्चंस में आपसे डिस्टेंस की बात होती है तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू जॉइन द 2 पॉइंट्स व्हिच इज द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट. तो आप इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये है आपका इनिशियल पॉइंट, ये है आपका फाइनल पॉइंट. यू ज्वाइन देम. अब क्या होगा? कई बार आप स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना हुआ देखोगे कि ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था. जब आपने ज्वाइन किया तो क्या बनी? एक स्ट्रेट लाइन बनी. क्या बनी? स्ट्रेट लाइन बनी. कई बार क्या होता है स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो सकता है. राइट. अब ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये इनिशियल, ये फाइनल पॉइंट है. ये इनिशियल, ये फाइनल पॉइंट. अब आपने इनको ज्वाइन किया तो क्या बनी? एक बनी आपकी स्लांट लाइन. स्लांट लाइन मतलब तिरछी लाइन. तो जब बनती है तिरछी लाइन तब हमें क्या करना होता है? तो ये आपके लिए समझना थोड़ा सा शायद जरूरी है यहाँ पे, जिसकी वजह से आपका आंसर भी मेरे ख्याल से इसी वजह से गलत आया. तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं. नाउ यू ज्वाइन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट. यू ज्वाइन देम. कुछ इस तरह से ज्वाइन होगा ये. दिस इज द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट. Exactly, Ashish.
पाइथागोरस अप्लाई होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो स्लांट लाइन बनी है इसको सॉल्व करने का कोई और तरीका नहीं है हमारे पास इस प्रोवाइडेड इन दिस सर्कमस्टांसेस. व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू समहाउ ट्राई टू मेक इट अ राइट एंगल ट्रायंगल. अब इस सिचुएशन में राइट एंगल ट्रायंगल आप दो तरीके से बना सकते हो. एक, आप यहाँ पे एक्सटेंशन दे दें, ये एक्सटेंड कर दो आप, ये हमारे पास ऑलरेडी है, इसको आप यहाँ से मिला दो. राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, बट स्टिल अगर कोई ऐसा है जो बिल्कुल ही भूल चुका है, बेसिक्स का पार्ट है ये. राइट एंगल ट्रायंगल कब बनता है? व्हेन वन slant line, straight line is falling 90 degrees on the other baseline, then we can say there is a 90 degree angle. और एक जो हमारा ये right angle triangle होता है which has one of the angles as 90 degrees, इसके जस्ट सामने वाला साइड जो होगा, जिसको नहीं पता है, पता तो खैर सबको होगा क्योंकि बेसिक होता है, तो ये है आपका 90 डिग्री. 90 डिग्री जिन दो साइड्स में मिलकर बनता है उसको, उसमें से एक को आप बोल सकते हैं बेस, अदर one can be called as perpendicular. और 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है that is hypotenuse, and this side has the speciality of being the largest. ये सबसे longest of the among all the three sides. So hypotenuse will always be longer than the perpendicular and base, right? Now there is a formula in this. What is the formula? That there is a theorem that is applied here, जो कि आशीष ने भी बोला, that is Pythagoras theorem. What is the Pythagoras theorem? It suggests that the square of the longest side is this hypotenuse. The square of the longest side is always equal to the summation of the squares of the other two sides. What are the other two sides? One is p square, other is b square. So hypotenuse is always equal to the summation of p square plus b square, or you can put it this way, h equals to under root of p square plus b square. ठीक है, तो ये भी बन सकता है. फिलहाल आप इससे काम चला सकते हो. अब हमारे पास क्या बना, ये जो हमने ज्वाइन किया स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट को, जब हमने ज्वाइन किया तो ये क्या बनकर आया, ये जब भी आप स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करोगे हमेशा वो स्लैंट, अगर स्लैंट लाइन बनती है तो स्लैंट लाइन बनी तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल. एज सिंपल एज दैट, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द राइट एंगल ट्रायंगल्स हाइपोटेन्यूज, जो आपको फाइंड आउट करना होता है. तो दिस साइड इज हाइपोटेन्यूज, राइट? दिस कैन बी टेकन एज परपेंडिकुलर, दिस वन कैन बी टेकन एज बेस, एज सिंपल एज दैट. अब बेस कितना हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है भाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको पहले से पता है कितनी, 4. यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है. फाइंड आउट किसकी हेल्प से करोगे, ये जो लाइन है, अगर आप इस लाइन को और एक्सटेंड करते हैं, यहां तक अगर आपने एक्सटेंड कर लिया तो जरा समझो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, इसके बराबर हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी. ये कितनी, 2. और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, कंप्लीट 13 किलोमीटर. तो अगर मैं इतनी डिस्टेंस माइनस कर दूं तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी मिलेगी आपको, 13 minus 2. 13 minus 2 will be how much, 11. So that means this much of the distance is 11 kilometers. So this much of the distance will be parallel, again 11 kilometers. तो ये हो जाएगा 11 किलोमीटर्स, ये हो गया आपका 4 किलोमीटर्स. तो यहाँ से टोटल यहाँ तक का डिस्टेंस 11 plus 4 कितना हो गया, इट इज 15 किलोमीटर्स. So this much of the distance is 15 kilometers. This much of the distance anyone can tell me? कोई बताएगा मुझे कि ये परपेंडिकुलर कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो? 12 बताए सारे लोग. ओके, 12 कैसे हो जाएगा, बिकॉज दिस मच ऑफ द डिस्टेंस इज 8 किलोमीटर, फ्रॉम हियर टू हियर इज 8 किलोमीटर, एंड दिस distance is parallel to this distance. Since this distance is 4, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी. 8 and 4 will be 12. तो yes, definitely perpendicular will be 12. Correct. Good, आरुषि बिल्कुल ठीक बोलो. ऋषिकेश, आशीष, आरुषि, all are saying the right thing. अब हमें आंसर निकालना है, इसका तो आंसर निकालते जरा. अब 256 कैसे हो जाएगा भैया आशीष? नो, अंडर रूट ऑफ 256 नहीं होगा, गलती कर दी कुछ, देखो जरा इसको. तो h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर कितना, 12 का स्क्वायर. 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, प्लस b स्क्वायर कितना, 15 स्क्वायर. 15 स्क्वायर कितना होता है, 225. दोनों का ऐड कर दो, 4 and 5 9, 4 2 6, 2 and 1 3. तो ये आया आपका h स्क्वायर, या h इक्वल्स टू कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 369. एग्जैक्टली, अंडर रूट ऑफ 369. अब आपको एक और काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो जिसने क्वेश्चन बनाया उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया इस क्वेश्चन में. If you pay attention to your options, you can't just directly say कि आप none बोल दोगे. आपको क्या करोगे, कोई बात नहीं आशीष, that you have understood, that's great. तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जो 369 का रूट बन सकता है. तो you have to see your options also. So tell me which option will be the right one.
बताओ, चेक करो भाई। बी ऑप्शन ऋषिकेश, ग्रेट। आपको करना क्या, आपको कुछ नहीं करना, इसको सिंपली आप देखते कैसे, 43 के बाहर रूट में क्या लिखा है, 3 लिखा है ना, मतलब रूट से बाहर क्या लिखा है, 3 लिखा है, यानी कि व्हेन दिस विल बी द पार्ट ऑफ रूट, दिस विल गो इनसाइड द रूट, इट विल बिकम व्हाट, 9 ना। तो यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो आई कैन राइट द होल थिंग, ऑप्शन ए कैन बी रिटन एज 43 into 9 ना। अब इसको कैलकुलेट, 9 3 कितना, 27, लास्ट की डिजिट क्या आ रही, 7 आ रही, तो इससे मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो इसको हटाओ, ये ऑप्शन को, बी ऑप्शन पे आओ। बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, रूट में 41 into 9 हो जाएगा। 41 into 9 कितना बनेगा, अगर मैं बी ऑप्शन को देखूं तो बी ऑप्शन कैन बी रिटन लाइक दिस ना, 41 into, अभी 3 बाहर है लेकिन अंदर क्या रहा होगा, अंदर 9 रहा होगा, 9 1 9, 9 4 36, तो यस, फ्रॉम विच ऑप्शन वी आर गेटिंग द सेम, बी ऑप्शन, या एग्जैक्टली आशीष, बी ऑप्शन। नाउ टेल मी गाइस, इसमें अभी कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन तो प्लीज आस्क। ओके ग्रेट, चलिए तो फिर अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव नाउ, दिस इज अ टाइप 2, इट्स अ टाइप 2, और इसमें एक अच्छा बेहतरीन शॉर्टकट भी है, तो एक बार जरा आप इसको देखो, आप इस क्वेश्चन को बनाओ, कैसे बनेगा और मुझे अपना आंसर बताओ, फिर इसका हम शॉर्टकट डिस्कस करेंगे। आंसर ओके, ऋषिकेश का आंसर आ गया नॉर्थ। नॉर्थ, वेरी गुड। आरुषि का भी आंसर आ गया नॉर्थ, ग्रेट, ठीक आंसर है सबका, वेरी गुड गाइस। अच्छा देखो, अब मैं जैसे कर रही हूँ इस क्वेश्चन को, मुझे बताना आप लोगों ने वैसे किया है या नहीं किया है, ठीक है। अ डॉग रन्स 20 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, कहाँ पे मूवमेंट पहले हो रहा है, ईस्ट में, तो कितना मूवमेंट चल किया उसने, 20 मीटर्स, इधर आया, टर्न्स राइट, रन्स 10 मीटर। अभी ईस्ट में आप राइट टर्न करोगे तो ईस्ट के राइट में क्या आता है, साउथ आता है, साउथ में आप कहाँ पहुंच गए, 10 मीटर्स आपने चला, आपने नहीं चला, इसने चला, ठीक है। टर्न्स राइट अगेन, टर्न्स राइट अगेन एंड रन्स 9 मीटर, अब फिर से राइट टर्न किया है, अब साउथ में जा रहा है ये डॉग, साउथ में जा रहा है, तो ये राइट टर्न करेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, साउथ के राइट में क्या होगा, वेस्ट होगा ना, तो वेस्ट में इसको पहुंचा दो। कितना मूवमेंट हुआ है, 9 मीटर्स हुआ है, सिंस 20 मीटर, 20 मीटर को थोड़ा बड़ा कर लेते, इसको बना लेते 20 मीटर्स, 9 मीटर को जितना कर लेते, 9 मीटर्स राइट, एंड देन टर्न्स टू द लेफ्ट, देन टर्न्स टू द लेफ्ट, रन्स 5 मीटर। अब ये मूवमेंट अभी किधर कर रहा है, वेस्ट में कर रहा है। अब यहाँ पर अगर आप लेफ्ट टर्न इसको कराओगे तो इट शुड गो इन दी साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन में आएगा, कितना मूवमेंट है, 5 किलोमीटर से, तो 5 मीटर यहाँ पे आ गया, देन टर्न्स लेफ्ट अगेन, रन्स 12 मीटर, अब फिर से लेफ्ट मूवमेंट होगा। राइट नाउ द डॉग इज मूविंग इन साउथ डायरेक्शन, लेफ्ट मूवमेंट करेगा तो कहाँ पहुंचेगा, ईस्ट में पहुंचेगा, तो पहली बात तो इसको ईस्ट में टर्न कराओ। दूसरा उसने बोला गया कि 12 मीटर चलाना है, अब जरा देखो 12 मीटर चलाना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे, 9 मीटर पे है, अगर ये 12 जाएगा तो ऑब्वियसली इस लाइन के आगे निकल जाएगा थोड़ा सा, तो तब जाके 12 मीटर डिस्टेंस बनेगी, करेक्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, 9 है, तो अगर हम 12 की बात करें तो 12 विल बी अ लिटिल मोर देन दिस, राइट। नाउ व्हाट दे से, दे आर आस्किंग एंड फाइनली टर्निंग टू द लेफ्ट रन 6 मीटर, और फाइनली उसने लेफ्ट में टर्न करा और 6 मीटर चला। अब ये जा किधर रहा है, जा रहा है ईस्ट में, ईस्ट के लेफ्ट में टर्न करेगा तो कहाँ पहुंचेगा, ये पहुंचेगा अपने नॉर्थ डायरेक्शन में,
एंड सिंस दिस मच ऑफ द डिस्टेंस इज 5, तो आपको 6 को थोड़ा सा ज्यादा दिखाना पड़ेगा, 6 meters of the distance it is. Now what they are asking now which direction dog is facing. अब आपको याद है हमने जो पहला क्वेश्चन किया था, आप सबको याद है कि द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जहां पे इस बात का हमने ध्यान रखा था कि जब उसकी अपनी डायरेक्शन पूछी जाएगी, उस पर्टिकुलर पर्सन की जो उस पाथ पे ट्रैवल कर रहा है उसकी अपनी डायरेक्शन पूछी जाएगी कि व्हाट डायरेक्शन द पर्सन इज फेसिंग एज ऑफ नाउ, व्हाट डायरेक्शन द पर्सन इज मूविंग इनटू, व्हाट डायरेक्शन द पर्सन इज गोइंग इनटू, जब इस तरह की बात होगी तब आप उसकी अपनी डायरेक्शन बताओगे. तो डॉग ने चलना शुरू किया था ईस्ट में, फिर आया साउथ में, फिर गया वेस्ट में, फिर आया साउथ में, फिर गया ईस्ट में, फिर आया नॉर्थ में. तो राइट नाउ द डॉग इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, जो कि आप सबने आंसर किया है, परफेक्ट आंसर किया है. अब जरा मुझे आप ये बताइए, डिड यू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर और नॉट, मतलब ये स्ट्रक्चर बनाया आप लोगों ने या नहीं? यस, ओके ओके. ऋषिकेश बोल रहे हैं कि नहीं, उसने नहीं ऐसा किया. बाकी मैक्सिमम द 99% people are saying yes, they have gone through the same structure. Now, and Rishikesh can not do what I am going to do now. You can tell me later कि आपने ऐसे किया है शायद, अगर ऐसे नहीं किया तो. अब देखिए जरा वो सारे क्वेश्चन, क्योंकि हमने इससे पहले एक सबसे पहला ही क्वेश्चन वो वाला किया था जहाँ पे हम जस्ट 4 डायरेक्शन. एग्जैक्टली, वेरी गुड ऋषिकेश, एग्जैक्टली. तो जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, डायरेक्शन किसी के रिस्पेक्ट में था. अब नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड द शॉर्टकट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, दैट कैन ओनली बी अप्लाइड टू दीज क्वेश्चन जहां पे उसकी अपनी डायरेक्शन पूछी गई है ना. व्हाट इज द शॉर्टकट? शॉर्टकट इज नथिंग बट जस्ट योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द डायरेक्शंस. दैट इज देखो, सो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड west. If you are in a direction, per se you are in north direction, right, and you take 2 consecutive, you can note it down अगर इससे पहले आपको इसके बारे में आइडिया नहीं था तो. if you take 2 consecutive similar turns, अगर consecutive का मतलब क्या, एक के बाद एक, अगर आपने एक के बाद एक 2 ऐसे टर्न लिए जो आपस में क्या सिमिलर है, सिमिलर टर्न्स, तो सिमिलर टर्न कब हो सकते हैं? या तो पहला टर्न आपने राइट लिया, दूसरा भी राइट ले लिया, पहला टर्न आपने लेफ्ट लिया, दूसरा भी लेफ्ट ले लिया, तभी तो ये दोनों चीजें पॉसिबल हो पाएंगी, राइट. सो इन दैट केस योर डायरेक्शन गेट्स ऑपोजिट. तो डायरेक्शन क्या हो जाती है? आशीष बोल रहे डज डिस्टेंस मैटर इन दीज क्वेश्चन. डिस्टेंस विल मैटर इन दीज क्वेश्चन इफ दे आर आस्किंग द डिस्टेंस. इफ दे आर नॉट आस्किंग द डिस्टेंस इट शुड नॉट मैटर, राइट. इन अ वे इट शुड नॉट मैटर. लाइक 20 मीटर को आप कितना भी दिखा सकते हो, जस्ट कि आपको ये देखना पड़ेगा, आपको हाँ रेंज आपको हमेशा, whether they are asking the distance or they are not, रेंज आपको हमेशा प्रॉपर तरीके से दिखानी पड़ेगी. यू कैन नॉट जस्ट ड्रॉ 9 मीटर एंड 18 मीटर इक्वल, नो, यू हैव टू मेक द डिस्टेंस. ये जो है डिफरेंशिएशन आपको दिखाना पड़ेगा, वरना आपकी डायरेक्शन भी गलत होगी, क्वेश्चन भी गलत होगा, डिस्टेंस भी गलत, सब गलत होगा, ठीक है. So we were discussing, if we take 2 consecutive similar turns, that means if we take first right then right, if or we take left and then again left, direction gets opposite. जो डायरेक्शन है आपकी वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है ऑपोजिट. फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्थ में, अब बताना मुझे, नॉर्थ में अगर आप पहला राइट टर्न लोगे तो कहाँ पहुंचोगे? ईस्ट में. दूसरा राइट टर्न लेते हो फिर कहाँ पहुंचोगे? साउथ में. तो नॉर्थ से आप कहाँ पहुंच गए? साउथ पहुंच गए ना. दूसरी बात, अगर आप वेस्ट में हो, आपने लिया पहला लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न लोगे तो कहाँ पहुंचोगे? साउथ में. दूसरा लेफ्ट टर्न लोगे तो फिर से कहाँ पहुंचोगे? ईस्ट में. तो वेस्ट से कहाँ पहुंच गए? ईस्ट में. तो इट्स अ वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन ऑफ द डायरेक्शन सेंस, आई वुड से, रादर देन अ शॉर्टकट, कि जब हम सेम टर्न फॉलो करते तो आप जिस भी डायरेक्शन में उसके जस्ट ऑपोजिट में पहुंच जाओगे. इफ सपोज यू आर इन ईस्ट, फॉर एग्जांपल आप ईस्ट में, आपने पहला राइट टर्न लिया, कहाँ पहुंच गए? साउथ में. दूसरा राइट टर्न लिया, कहाँ पहुंच गए? वेस्ट में. तो यू स्टार्टेड फ्रॉम ईस्ट बट यू एंडेड अप इन वेस्ट. तो ये हमेशा फॉलो करेगा, राइट. सिमिलरली इसका दूसरा केस क्या है? इसका दूसरा केस है कि इफ यू take 2 consecutive dissimilar turns, if you take 2 consecutive one after the other 2 dissimilar turns, so what can be the dissimilar turns? The dissimilar turns can be first right second left or first left second right. So if the person takes 2 consecutive dissimilar turns, right, so it can be of the form right then left, left then right, right. In that case, in this case you continue to be in the same direction. आप उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेंगे जिसमें आपने शुरुआत की थी. तो कंटिन्यू टू बी इन द सेम डायरेक्शन, right guys. Now let's see it practically also. So this is north, this is east, this is south, this is west. अगर आप नॉर्थ में हो,
नॉर्थ से आपने पहले ले लिया राइट टर्न, नॉर्थ में राइट टर्न लिया, कहाँ पहुंच गए, ईस्ट में पहुंच गए। अब ईस्ट से अगर आपने लिया लेफ्ट टर्न तो आप कहाँ पहुंचोगे, वापस से नॉर्थ में पहुंचोगे। सो यू स्टार्टेड फ्रॉम नॉर्थ, यू एंडेड अप इन नॉर्थ। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक वन मोर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। इफ सपोज यू आर इन ईस्ट, ठीक है, यू आर गोइंग इन ईस्ट, यू फर्स्ट टेक अ राइट टर्न, देन यू टेक अ लेफ्ट टर्न। तो राइट टर्न लोगे तो कहाँ पहुंचोगे, साउथ में। इफ यू टेक अ लेफ्ट टर्न देन यू बी इन, अब साउथ में आके साउथ में लेफ्ट टर्न लोगे तो कहाँ पहुंचोगे, वापस से ईस्ट में ना। तो कहाँ से शुरू किया, ईस्ट से, कहाँ पहुंच गए, ईस्ट में। डायरेक्शन रिमेन सेम। yes, there will be a difference of distance, displacement तो हो ही रहा है ना, as you see displacement is happening, तो distance पे फर्क पड़ेगा, but हाँ हम सिर्फ डायरेक्शन की बात करें तो yes, डायरेक्शन can be taken in this way, so right left left right, क्लियर है ये बात, इतना समझ में आया आप लोगों को? गाइस प्लीज टेल मी फटाफट से। ठीक है, अब इसको हमें अप्लाई कैसे करना है ना, दिस इज द कॉन्सेप्ट इन फ्रंट ऑफ यू। हाउ डू वी अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू गेट टू दिस क्वेश्चन इन मिनिमम टाइम? सो द सिंपल फंडा इज, ये तो हमारा लॉन्ग कट हो गया, इसको हटाओ जरा भी। ओके, व्हाट हैपेंस, आप क्या करेंगे, आप इनिशियल डायरेक्शन पे ध्यान दोगे। अ डॉग रन्स 20 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, पहली डायरेक्शन कहाँ से शुरुआत हुई है, ईस्ट से शुरुआत हुई है, तो ईस्ट आप दिमाग में रखो या कहीं पे नोट डाउन कर दो। दूसरा बात उसने क्या किया, टर्न्स राइट, फिर उसने टर्निंग जो जो किया आप उन टर्न्स को नोटिफाई करो। पहला टर्न क्या किया, राइट, दूसरा टर्न क्या किया, राइट, तीसरा टर्न क्या किया, टर्न्स टू लेफ्ट लेफ्ट, उसके बाद टर्न क्या किया, लेफ्ट, उसके बाद टर्न क्या किया, कहाँ गया, 12 एंड फाइनली हाँ फिर से लेफ्ट किया, इजंट इट? तो पहले से 2 राइट टर्न किए, फिर से 3 लेफ्ट टर्न किया। आप क्या करोगे, आप इनकी पेयरिंग कर दो, ठीक है, एक पेयर, दूसरा पेयर, और इसका पेयर नहीं बना, जिसका पेयर नहीं बना उसको छोड़ दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो पहला पेयर बन रहा है, अब ये डॉग ने इनिशियली कहाँ से शुरू किया, ईस्ट से शुरू किया। अब ईस्ट से शुरू किया और 2 कैसे टर्न लिए, 2 सिमिलर टर्न लिए। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सिमिलर में डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, और ऑपोजिट यानी कि डिसिमिलर टर्न में डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। तो उल्टा हिसाब किताब है, ऐसे भी आप दिमाग में रख सकते हो। तो पहला राइट टर्न, दूसरा राइट टर्न, यानी कि आप पेयर ऑफ सिमिलर टर्न विल मेक हिम गो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि 2 राइट टर्न लेने के बाद वो कहाँ पहुंच चुका होगा, वेस्ट में। अब 2 कैसे फिर से टर्न लिए, लेफ्ट लेफ्ट, यानी कि सिमिलर टर्न से डायरेक्शन फिर से क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। अब ऑपोजिट हो जाएगी तो वेस्ट से कहाँ पहुंच जाएगा, वापस से वेस्ट से आ जाएगी ईस्ट में। अब वो ईस्ट में ट्रैवल कर रहा है, अभी कौन सा एक लास्ट टर्न रहेगा जिसका हमारा पेयर नहीं बना है, लेफ्ट टर्न। तो सिंपल सा दिमाग लगा लोगे, ईस्ट के लेफ्ट में क्या होता है, ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ होता है, यानी कि इससे जो रिजल्टेंट वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, नॉर्थ मिलेगी। सो आंसर आपका क्या है, नॉर्थ हो जाएगा। क्लियर? क्या इतनी बात आपको समझ में आई है? ग्रेट, तो ये शॉर्टकट आप अप्लाई कर पाओगे, है ना, इजी भी है और कितना बढ़िया भी है। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज इसमें समझ लेते हैं। लेट सपोज, वेट, हाँ ये क्वेश्चन था ना, हाँ लेट सपोज अगर इसी में होता, ये इनिशियल राइट सेम रहती और हमारे पास टर्न्स हो जाते बहुत सारे, कि पहले राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, मतलब इनिशियली ईस्ट में ही यहाँ से यहाँ तक का सब हिसाब किताब सेम है, बाकी चेंज हमने कर दिया, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, राइट लेफ्ट, राइट राइट राइट। लेट सपोज ये अगर हमारे पास टर्न हो जाते, अब आपने फिर से वही फंडा अप्लाई करना है। क्या करोगे, पेयर बनाओगे, एक पेयर ये बना, दूसरा पेयर ये बना, तीसरा पेयर ये बना, चौथा पेयर ये बना, इसका पेयर नहीं बन रहा, लीव इट। अब ये जो पेयर कैसा है, राइट लेफ्ट ऑपोजिट टर्न से। अब आपको इतना भी प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू आवर एग्जामिनेशन सेंस, कि आप इतना भी प्रोसेस मत करिए कि अरे ये तो राइट और राइट टर्न है, फिर ये लेफ्ट टर्न है, ये तो आपस में क्या, इससे तो डायरेक्शन सेम रहेगी, तो ईस्ट में था तो ईस्ट में, इतना भी नाटक करने की जरूरत नहीं। आप सिंपल क्या करोगे, यू जस्ट कैंसिल इट आउट, इट इज ईदर वे इट इज नॉट अफेक्टिंग आवर डायरेक्शंस एट ऑल, राइट? तो आप इतना भी मत करो, आप सिंपल देखो कि अच्छा राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट, wherever you find a pair of opposite turn, just cancel it out because it is not going to affect anyway. तो आप इसको सीधे कैंसिल करो, कैंसिल करो, कैंसिल करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज द डायरेक्शन इज गोइंग टू बी सेम, दैट इज द इनिशियल वन। अब जब आप यहाँ पर आए तो ईस्ट से आप कहाँ पहुंच जाओगे, इतने टर्न के बाद वेस्ट में, और वेस्ट के राइट में क्या होता है, वेस्ट के राइट में नॉर्थ होता है। तो आंसर इससे भी हमारा क्या बनकर आता है, नॉर्थ ही बन के आता है। यू अंडरस्टैंड दिस फंडा ऑल्सो? ग्रेट, चलिए तो आगे बढ़े, लेट्स सी कि हमें कितना समझ में आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और देती हूँ इसको अप्लाई करने के लिए, वी विल सी कि कितना हम समझे इससे। ठीक है, थैंक यू ऋषिकेश, थैंक्स, थैंक यू आरुषि।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक बार जरा इसको करके देखो आप लोग। वन, ओके ओके। आशीष, आई वुड एडवाइज यू दैट एक बार आप और ट्राई कर लो इसको, just so that you have time, you can still give it a try. C option, Rishikesh का answer है C option. Okay, great. आशीष ने चेंज किया, ओके दैट्स ग्रेट। सना का भी आंसर आया है सी ऑप्शन, वेरी गुड। दिया बंसल, दिया ने भी आंसर सी ऑप्शन किया है, ग्रेट। चलिए काफी लोगों ने आंसर कर दिया, तो अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, क्या हम वेट सॉरी तो क्या, अच्छा पहली बात तो क्वेश्चन है कि बहुत सिंपल सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्निंग सीक्वेंसेस विल मेक अ पर्सन मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट मूव टुवर्ड्स साउथ। सिंपल सी बात है, अगर आप ईस्ट में हो और आपको पहुंचना है साउथ में, तो आप क्या करोगे, सीधे एक राइट टर्न ले लो, है ना। एक वन राइट टर्न विल मेक यू गो फ्रॉम ईस्ट टू राइट टू द साउथ डायरेक्शन। लेकिन क्योंकि हमारे ऑप्शंस वन टर्न की बात नहीं कर रहे, हमारे ऑप्शन कितने टर्न्स की बात कर रहे हैं, 3 टर्न की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने एक साउथ टर्न नहीं लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा, पहले नॉर्थ में आना पड़ेगा, दूसरा लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा, वेस्ट में आना पड़ेगा, तीसरा लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा, फिर कहाँ पे आना पड़ेगा आपको, फिर से अपने इसमें फिर साउथ में आना पड़ेगा। तो ईदर यू टेक 3 लेफ्ट टर्न्स, और इफ यू सी कि पहले अगर आप राइट में गए, राइट में जाके फिर आप किधर आ जाओ, वापस लेफ्ट ले लो। सॉरी, पहले आप लेफ्ट में गए, क्योंकि ईस्ट से आपको नॉर्थ में जाना है, पहले आप लेफ्ट में गए, कहाँ पे आ गए आप, ईस्ट से नॉर्थ में आ गए, फिर नॉर्थ से वापस आप ईस्ट में आ जाओ, राइट टर्न ले लो, और फिर आप क्या ले लो, फिर से एक राइट टर्न ले लो। तो या तो लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, या फिर लेफ्ट राइट राइट, दीज 2 सीक्वेंसेस विल मेक यू गो फ्रॉम ईस्ट टू साउथ। फिलहाल ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, बट अगर हम इसको ऐसे देखें, लेट्स सपोज मेरे पास पहला ऑप्शन क्या है, एल आर एल, दूसरा क्या है आर आर आर, तीसरा क्या है अपने पास एल एल एल, ये 3 ऑप्शन हो गए। फिफ्थ क्या है, डेटा इनएडिक्वेट, एंड देन लास्ट वन इज नन, राइट। अपनी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि द पर्सन राइट नाउ इज इन ईस्ट, इनिशियली द पर्सन इज इन ईस्ट, हमें रिजल्ट क्या चाहिए, हमें नॉर्थ सॉरी साउथ चाहिए, रिजल्ट क्या चाहिए, साउथ चाहिए। अब ईस्ट में है वो पर्सन, 2 कैसे टर्न है, ऑपोजिट टर्न, कैंसिल इट आउट, क्योंकि ईस्ट ही रहेगा। ईस्ट से लेफ्ट में आप टर्न लोगे, ईस्ट से लेफ्ट में टर्न लोगे, तो ईस्ट के लेफ्ट में क्या होता है, नॉर्थ, यानी कि अगर वो ये टर्न फॉलो करेगा तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, नॉर्थ निकल कर आएगा। बी ऑप्शन पे आते हैं, इनिशियली कंडीशन क्या है, ईस्ट है, 2 राइट टर्न विल मेक हिम गो वेस्ट, वेस्ट के राइट में क्या होता है, वेस्ट के राइट में भी नॉर्थ होता है, तो ये इससे भी नहीं बनेगा, इससे कहाँ पहुंच जाएगा, नॉर्थ में पहुंच जाएगा। तीसरे पे आए, अब तीसरे में क्या है, अब थोड़ा सा आप और स्मार्टली काम कर सकते हैं, थोड़ा और कम काम कर सकते हैं, मतलब थोड़ा ब्रेन वर्क ज्यादा हो सकता है और हम हाथ से काम कम करें। ईस्ट में जब आप हो और यू आर टेकिंग अ सीक्वेंस ऑफ राइट राइट राइट, यू आर रीचिंग इन नॉर्थ, again the condition is same, you are again in the same direction east, but the sequence has completely been changed, opposite I would say, not change but opposite। तो right 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 की जगह क्या है, left left left, तीनों कैसे जस्ट उल्टे टर्न है, तो जो रिजल्ट होगा वो भी जस्ट उल्टा होगा, यानी कि साउथ होना चाहिए फॉर श्योर। तो इतना देखने के बाद आपको ये और ये देखने का मतलब ही नहीं, सीधा आपका आंसर सी मार्क होना चाहिए। हालांकि अगर किसी को हाउएवर किसी को अगर प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, तो इसको हम सॉल्व भी करके देख सकते हैं। 2 कैसे टर्न हो गए, सिमिलर टर्न, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। ईस्ट से कहाँ पहुंच जाएगा वो बंदा पर्सन, वेस्ट में, और वेस्ट से लेफ्ट में टर्न आप लोगे तो वेस्ट के लेफ्ट में क्या होता है, ये है वेस्ट, वेस्ट के लेफ्ट में होता है साउथ, और वेस्ट के राइट में क्या होता है, नॉर्थ।
Right to best left miss out, yeah, definitely the answer will be C option, which you all guys have. And I'm sure कि आप लोगों ने ये हमने जो अभी concept सीखा वो आपने try करने की कोशिश की होगी, लगाने की कोशिश की होगी. You guys did not draw it like this. ऐसे तो नहीं किया होगा, I'm sure. Very good. So that's the importance. That is what is important कि हमने concept समझ तो लिया, लेकिन concept apply करना भी आना चाहिए. ऐसा नहीं कि समझ तो सब सारी चीजें लिए लेकिन apply हम नहीं कर पा रहे. That's not done. चलिए तो आगे बढ़े थोड़ा सा. इसको आप एज ए स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि टाइम इज जस्ट 3 मिनट्स हमारे पास है, हो नहीं पाएगा ये क्वेश्चन. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस कैन बी योर होमवर्क एंड take a screenshot of this question also, guys. This can also be a very good question for your learning and growth in the direction sense. Done with this one? Okay. और एक क्वेश्चन का आप और स्क्रीनशॉट ले लो. दैट विल बी अमेजिंग इफ यू सॉल्व इट एंड इफ यू इवन ट्राई टू सॉल्व इट. इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप. ठीक है, अगर हमारे पास टाइम होता तो वी वुड हैव ट्राइड दिस क्वेश्चंस, बट फॉर नाउ यू कैन टेक इट एज होमवर्क एंड will be all guys for today's session. Thank you so much, ma'am. I learned this particular trick today, and I was solving it along with the kids, and it was so easy. Right है, उल्टा हो जाएगा, and left. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Rishikesh and Arushi. That's great that we learn together. I learn a lot from you guys, and the same. Thank you so much. Thank you, ma'am.